इन्वेंटरी में जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का हाँ, in case of joint product by product, Ind AS 2 states that whenever you are coming out with a joint product and by product, what to do in that case? Act बोलता है step number 1, see in joint product by product what happen, we have a common process, and after the common process that emerges main product and by product. Main product can be 2, 3 and by product. तो एक्ट बोलता है कि जो कॉमन कॉस्ट है वो मेन प्रोडक्ट में कैसे बांटना चाहिए, वो ये चैप्टर और कुछ नहीं. तो हाउ टू अलोकेट द कॉमन कॉस्ट अमंग द मेन प्रोडक्ट. तो अलोकेशन ऑफ कॉमन कॉस्ट नवंबर 12 के एग्जाम में आ चुका है. अलोकेट कॉमन कॉस्ट अमंग द मेन प्रोडक्ट. हाउ टू अलोकेट इट. सपोज दिस इज अ कॉमन प्रोसेस and this is common process that emerges a byproduct and two main product, MP1 and MP2. Yes. How to allocate this common cost? Act बोलता है step number 1, calculate common cost. Calculate what is common cost? Common raw material, common wages, common variable, common fixed overhead. All those things which I shown you common. Calculate common cost. Step 2, at this point, now इसका सेलिंग प्राइस निकालो, वो इसमें से डिडक्ट करो कॉमन कॉस्ट से, तो नेट मिलेगा आपको. कैलकुलेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, यस, और स्क्रैप. स्टेप नंबर 3. Step number 3 is nothing but step number 1 minus step number 2, net common cost. Step number 3 is net common cost. Net common cost, which is nothing but step number 1 minus step number 2. तो अगर एक कॉमन कॉस्ट 1 लाख रुपया है, बाय प्रोडक्ट को बेच कर जो हमें कुछ काम का ही नहीं है 2000 रुपया मिलेगा, तो 98,000 आपको MP1 MP2 में बांटना है. स्टेप नंबर 4, allocate the common cost, net common cost, allocate among main product in rational and systematic ratio. Rational and systematic ratio. What is rational systematic ratio? Any ratio which you like, maybe just number of units into selling price. हो गया भाई. If you apply this step on any problem, you will get the answer. main product in rational and systematic ratio. Suppose the common cost is 1 lakh, raw material, variable and all. At this point, we have a point whereby you have byproduct whose net realizable value is 2000. Your net common cost is 98,000. And then emerges two main product, MP1 and MP2. We can divide in these two in a particular ratio, any ratio. Let's say MP1 number of units are N1, MP2 number of units are N2, sold at a price of SP1, SP2. इन दोनों के रेशियो में आप इसको अलोकेट कर सकते हैं. एग्जाम में दिया जाएगा आपको. सेलिंग प्राइस के बेस. हाँ, सेलिंग प्राइस के बेस. this net common cost will be attributed in this ratio. और अगर नहीं दिया है तो नंबर ऑफ यूनिट्स की रेशियो मिलेगा. रेशियो मेंशन नहीं किया है. In the ratio of the sales or in the ratio of the number of units, depending on what information is available. हाँ, mostly it is into number of units in sale. But that is available normally. Sales का फिगर दिया है तो हम Production, not closing stock. Production. अभी suppose that emerges MP1, MP2 product, correct? So by deducting this, whatever you get, dividing these two ratio into number of units produced for M, number of units produced for M2, correct? Into the selling prices, है ना?
that you allocate to it. They can have a single cost and single cost now, especially. Suppose ये number of units है 100 units और selling price का है मान लीजिए 400, इसके number of units है 200, correct? और इसका selling price है 500, that's 1 lakh, that's 40,000. तो 1,40,000 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे. नवंबर 12 का सम देखो, नवंबर 12 आया है 4 मार्क. क्वेश्चन नंबर 1 ABCD में आया है नवंबर 12. Now AS11 accounting for foreign exchange. Now what happened? Ind AS Ind AS 21 है इसका. In case of foreign exchange transaction, what to do? Act बोलता है when you have a foreign transaction, you are in India and your transaction is in foreign, how to convert that dollars into rupees? Because ultimately you are reporting in rupees, but your transactions are floating in foreign currency, euro, dollar and all. So how you are required to convert that in today's value? You evaluate, record it and what? तो इसमें हमें दो में डिवाइड करना है चैप्टर को. एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में करना है और दूसरा जो है वो है फॉरेन ऑपरेशंस. ये एग्जाम में कभी नहीं आता फॉरेन ऑपरेशन, खाली वो आता है फॉरेन ट्रांजैक्शन. व्हाट इज ट्रांजैक्शन? फॉरेन ट्रांजैक्शन, बाइंग, सेलिंग एंड ऑल. What is foreign operation? Branch and subsidiary in foreign country. You consolidate it, correct? So foreign transaction. Now, what is reporting currency? Currency in which we are reporting our financial statement. Other currencies are foreign currency for us, correct? Now what happened? Foreign transaction हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हमको रिकॉर्ड करना है रुपीस में, लेकिन ट्रांजेक्शन चल रहे हैं डॉलर में. ठीक है. अब मशीन तुमने फॉरेन से खरीद के यहाँ लेकर आए तो मशीन फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं है, बिकॉज मशीन इज देयर इन इंडिया, करेक्ट. बट अगर डेटर्स फॉरेन में है तो दैट इज फॉरेन ट्रांजैक्शन. स्टॉक फॉरेन में पड़ा हुआ है कंसाइनी के बाद, स्टॉक इज फॉरेन ट्रांजैक्शन. एनीथिंग विच इज इन फॉरेन डिनोमिनेशन एट प्रेजेंट ऑन मार्च इज फॉरेन ट्रांजैक्शन, करेक्ट. अभी तुमने जमीन खरीदी ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज फॉरेन ट्रांजैक्शन, दैट इज फॉरेन ट्रांजैक्शन. उससे रेंट मिल रहा है तुमको तो वो रेंट भी फॉरेन ट्रांजैक्शन है, जमीन भी फॉरेन ट्रांजैक्शन. हाँ, वो अलग है, वो अलग है. एट प्रेजेंट टीचिंग फॉरेन ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शन क्या हो गया? एनी ट्रांजैक्शन विच इज एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी, दैट इज फॉरेन ट्रांजैक्शन. नाउ व्हाट वी शुड डू? वी शुड रिकॉर्ड इट एंड वी शुड वैल्यू इट, दैट्स ऑल. रिकॉर्ड करना है रुपीज में, लेकिन है वो डॉलर में. तो क्वेश्चन इज हाउ विल यू रिकॉर्ड एंड वैल्यू इट? इसके लिए क्या करने का? फॉरेन ट्रांजैक्शन को दो में डिवाइड करने का. इनिशियल रिकॉग्निशन और दूसरा वैल्यूएशन ऑन बैलेंस शीट डेट. इनिशियल रिकॉग्निशन एंड वैल्यूएशन ऑन बैलेंस शीट डेट. कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन को आपको इनिशियल रिकॉर्ड करने का, फिर वैल्यूएशन करने का. कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करने का? हमेशा स्पॉट रेट में, या तो एवरेज रेट भी, वीकली एवरेज भी चलेगा. वीकली एवरेज से अच्छा स्पॉट रेट भी चलेगा. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. आई हैव फॉरेन डेटर्स and I sold goods of $1,000 and my spot rate is 70 rupees. 70,000 is my debtors value. Initial recognition, correct? Initial में कोई problem ही नहीं है. Just apply the rate which is prevailing on the date of transaction. But what about valuation rate? This is dangerous. Valuation के लिए क्या करने का आपको? वो foreign transaction को दो में डिवाइड करने का. एक मॉनिटरी आइटम है ना, और एक बोलो मेरे को नॉन. व्हाट इज मॉनिटरी आइटम? मॉनिटरी आइटम का मतलब वो एसेट और लायबिलिटी होता है जिसका मॉनिटरी वैल्यू होता है और फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है. इट्स अ फिक्स्ड मॉनिटरी वैल्यू. डेटर्स आर मॉनिटरी बिकॉज दे फिक्स्ड वैल्यू एंड दे आर कन्वर्ट टू कैश. प्रीपेड एक्सपेंसेस वो नॉन मॉनिटरी है. क्यों? प्रीपेड एक्सपेंस फिक्स होता है लेकिन मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता तो मॉनिटरी है.
कंडीशन 1 उसका अमाउंट फिक्स होना चाहिए, कंडीशन नंबर 2 वो कैश में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर ये गायब है तो मॉनिटरी नहीं हो, ये गायब है तो मॉनिटरी नहीं है, समझ में आया? दोनों होना चाहिए तो मॉनिटरी। लोन इज मॉनिटरी, लैंड इज नॉन मॉनिटरी बिकॉज लैंड नेवर हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, करेक्ट? तो लैंड इज नॉन मॉनिटरी, प्लांट एंड मशीनरी नॉन मॉनिटरी, इंटेंजिबल एसेट नॉन मॉनिटरी, गुडविल नॉन मॉनिटरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉन मॉनिटरी, डिबेंचर्स मॉनिटरी, शेयर्स नॉन मॉनिटरी, एंड डेटर्स नॉन मॉनिटरी, लोन नॉन मॉनिटरी, सॉरी क्रेडिटर्स मॉनिटरी, ये मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। यस, तो इनिशियल रिकॉग्निशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के दोनों को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करना है, करेक्ट? लेकिन द डिफरेंस अराइज ओनली व्हेन यू वैल्यू देम ऑन 31st March, करेक्ट? How should you value monetary item once debenture of fixed value or redemption? Share doesn't have a fixed value. It can be sold at any price. We don't know. Now, debtors initially recorded at 70. Now, in March, debtors is a monetary item. At what rate will you value? Very simple. You'll apply closing rate. So debtor is now 71 exchange rate. So I'll apply closing rate and make it 71,000, and my difference will arise as 1,000. Agreed everyone? तो debtor is valued at 71 closing rate. यानी इसमें जितने आते हैं सबका closing rate का, आंख बंद करें closing rate. शर्त वो monetary होने चाहिए. But if it is non-monetary, then you can apply closing rate because they are not converted to cash. Correct? So in that case, what you should do? There are two possibilities. Number one, number two. If non-monetary item is carried at cost, so you multiply the original spot rate only, don't revalue it. But if the non-monetary item is carried at fair value, then you should multiply by the closing rate. Very important. पहले कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग इस पे सम करते हैं। Monetary is looking dangerous. Can you see? Yes, there is no danger. Closing. Just think of 71. This is dangerous. Now this difference will go where? Maybe P&L. I don't know. At present P&L only. Debtors are valued at this. Loan. So I have a loan of $6,000. What was the exchange rate in the beginning? Sir, 60.5. Multiply and get the answer. The exchange rate becomes 61. The difference you revalue it. Go on doing this. This is monetary item. There is no tension only. Tension is there in non-monetary. What is this? Non-monetary credit cost, spot rate, fair value, closing rate. Let's understand. Inventory is non-monetary. Do you agree with that? Huh? So initially I purchased inventory in foreign country. 1,000 pound. I'll record in India at my spot rate. Step number 1, initial recognition. Initial recognition is irrespective of monetary or non-monetary. Suppose I recorded it pound at 80.5. Correct? Yani 80,500 if I'm not wrong. Initial recognition. Now in March, how will I value my non-monetary item? Stock या कुछ भी हो, non-monetary. What I should do on 31st March, suppose my NRV of the goods is 990 pound and my closing rate on this date is 81. How will I record my stock? Wait. Cost portion should be multiplied by spot. Tit for tat. Tit for tat. Tit for tat. Cost 8,500.
and this will be 990 into 81. Agreed. चल मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आता है. 80190. 80. 190. Whichever is less. Whichever is less. Apply AS2 now. You can't apply AS2 on 1090. No, 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 no. AS2 will be applied on the, this is this. This is this. 80190. Stock value is not 8500, but whichever is less. I write off my stock by the difference. You have to apply AS2 also here. You apply Forex also. Forex apply पहले करने का. आप A पहले multiply करके ले लेने का, फिर AS2 apply करने का. Example number 2. Example number 2. For example, land. Suppose my cost was pound 1 lakh at a cost of 80. That's it. 80 lakh. And on 31st March, my recoverable value of land is, what is recoverable value? Impairment में recoverable value निकालते हैं हम लोग. Fair value. It's 1,02,000 pound. Exchange rate is 70. Try to understand, please. Cost is 1 lakh, spot is 80, product is 80 lakh. Cost, fair value is 1 lakh 2, closing rate is 70, multiply करके बोलो आप कितना 1 lakh 2 into 70,000. 714. Huh? Now here you should refer A10 or Index 16 for valuing land. Now value land. Or maybe impairment chapter. The asset is impaired. Reduction of asset. Correct? Just like stock. The valuation is 714,000. This means the knowledge of this chapter is not enough. You should also know inventory. You should also know AS10, Index 16. In Index 16, AS10 and impairment, what you do? You value the land by the lower amount. No, I am following. Let's say this is a downward revaluation. You write off the difference to P&L account. Suppose ये answer आपका आया 80 lakh 10,000. Whatever answer you got, more than this, so it will be 80 lakh only. Now that is not whichever is less. Land is valued at a particular method. In fact, आपको land का valuation पढ़ना पड़ेगा ये समझने के लिए. मेरे पास कोई आंसर नहीं है. Stock का पता है, आपको पता था इसलिए. Land stock comes under this category. Now current investments, it is whichever is less. So first you apply these two rates, then whichever is less. Long term investments, you don't apply whichever is less, you keep it cost only. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आंसर यही आएगा. ये दोनों का लेस नहीं दे सकता है, तो यही आएगा आंसर आपका. अब सपोज AS13 कर रहे हैं आप लोग. AS13 के मुताबिक आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है. हाँ, आपने इन्वेस्टमेंट जब खरीदा, व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? केप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year and the valuation is not whichever is less. Keep it cost. Suppose you purchase 100 shares and there in that country the cost was $100 and my exchange rate is 50. This is my cost. But on 31st March the 100 share का वहाँ cost हो गया 95 और exchange rate भी नीचे आ गया 49. Now here, being a long term investment, I will value at cost only, because as per AS13 long term investments are never valued whichever is less. अगर करंट होगा तो फिर whichever is less आएगा इन दोनों का. यानी आपको whichever is less डॉलर में नहीं रुपीस में करना पड़ेगा, स्टॉक में whichever is less करना पड़ेगा. But it's very important to discuss with you that non-monetary items are very dangerous. How to interpret this? This indicate जो कॉस्ट का अमाउंट है उसको स्पॉट से मल्टीप्लाई करो, जो फेयर वैल्यू क्लोजिंग करो, फिर आपका एज फॉलो करो. करेक्ट? स्टॉक का एग्जांपल कॉपी कर लो एंड यू कैन कॉपी दिस एग्जांपल इज इनफ. स्टॉक का एग्जांपल इनफ है.
लेकिन एग्जाम में नहीं आता है. दे नेवर आस्क नॉन मॉनिटरी, दे ऑलवेज आस्क मॉनिटरी आइटम. चलो आगे बढ़ते हैं. Next, now where the exchange difference will be transferred? You applied spot rate? Yes. And now you applied this rate, closing rate, or maybe closing rate here. इन दोनों का difference कहाँ जाता है? Sir, if the my inventory is valued at 8500, there will be no difference. There will be no difference. But if inventory is valued at this rate, difference will arise. तो Act बोलता है the difference will normally go to P&L account. एक्सचेंज डिफरेंस कहां पर जाएगा बोलो? एक्सचेंज डिफरेंस नॉर्मली P&L में जाएगा. लेकिन एक एक्सेप्शन है इसके. एक्सेप्शन क्या है? वो बोलता है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी ने अपने सब्सिडरी को लॉन्ग टर्म लोन दिया है. व्हाट इज लॉन्ग टर्म लोन? जो रिपे करने का कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो वो लोन पे जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, दैट विल नॉट बी ट्रांसफर टू P&L, दैट विल बी रिटेन्ड अंडर फॉरेन करेंसी रिजर्व अकाउंट. एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. तो होल्डिंग हैज गिवन लोन टू अ सब्सिडरी. A loan is of $1,000. Exchange rate is 80 per dollar. On 31st March, the exchange rate has become 82. Loan being a monetary item, apply closing rate, no problem in that. यानी में loan will be initially recorded at 80,000. On March it will be 82,000. वो सब ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. डिफरेंस 2,000 का क्या करें आप? Now this is a loan given by holding to subsidiary. तो मैं अकाउंटिंग एंट्री गेन है ना आपको, होल्डिंग के लिए गेन हो गया. एंट्री विल बी लोन डेबिटेड बाय 2000 एंड क्रेडिट नॉट P&L बट क्रेडिट टू फॉरेन करेंसी रिजर्व अकाउंट. वरना P&L में आना चाहिए. कॉपी कर रहे हैं दोनों. नॉर्मली एक्शन डिफरेंस गोज टू P&L मोस्टली. One more action difference. Two more. One is generally P&L. Second, holding giving loan to subsidiary. Third, मैंने पढ़ाया आपको borrowing cost में. Some action difference will be added to the qualifying asset, saving of interest. Remaining will come here in P&L. याद है आपको? वो. But that is not discussed here. It is discussed in borrowing cost. But it is a part. Some of the action difference will be what? सेकेंड था आपका ये एक्सेप्शन. थर्ड, बोरोइंग कॉस्ट पढ़ना चाहिए, मैं नहीं पढ़ा सकता है. तो लोन पर जो क्वालिफाइंग एसेट के लिए लेते हैं उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस है, हाँ, ओनली टू द एक्सटेंट इंटरेस्ट इज सेव्ड, वो एक्सचेंज डिफरेंस आपका कैपिटलाइज होगा. वो तो बोरोइंग कॉस्ट में पढ़ाया था. हाँ, वो भी एक्सेप्शन है ना इसका. और फोर्थ क्या है एक्सचेंज डिफरेंस? आफ्टर दिस यू कैन ब्रिंग एनी प्रॉब्लम टू मी, एनी प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व. आगे बढ़ू मैं. सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आ चुका है. कंपनीज एक्ट, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स में एक एक्ट आया है जहां पर
एक्सचेंज डिफरेंस कहीं पर भी नहीं जाएगा। लेकिन अप्लाई कब होगा वो सुनिए। कंडीशन नंबर 1, यू शुड टेक अ लोन ऑफ पीरियड मोर देन 1 ईयर। छोटा लोन नहीं, 2 महीने 3 महीने का। सेकेंड, वो लोन आप लिए हैं, then in that case you have an option। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस गो टू पीएन। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए आपको डिस्क्लोज करना पड़ा, आई एम गोइंग फॉर द ऑप्शन। अगर ऑप्शन चुनते हो तो क्या होगा, वो लोन का एक्सचेंज डिफरेंस, लोन इज मॉनेटरी आइटम, क्लोजिंग रेट, ठीक है, लेकिन लोन का एक्सचेंज डिफरेंस नॉर्मली पीएन में जाएगा, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट अडॉप्ट करोगे तो पीएन में नहीं जाएगा। देन यू शुड सी दैट ऑप्शन फॉलो किया, नहीं किया या किया। नहीं किया तो पेनल में जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस। किया तो आप क्या करना है देखिए कंपनीज एक्ट में, यस किया तो क्या करना है। क्या आपने लोन कोई डेप्रिशिएबल एसेट के लिए यूज किया है, क्या आपने लोन किसी और पर्पस के लिए यूज किया है। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द कंपनीज एक्ट देन देयर इज नो डाउट पीएनएल। इफ फॉलोइंग कंपनीज एक्ट तो लोन क्यों यूज किया, डेप्रिशिएबल एसेट या एनी अदर पर्पस, वर्किंग कैपिटल एंड ऑल। You have an option here. In this case, action difference will be adjusted in the asset account. एक इफेक्ट लोन में आएगा। हाँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं I took a loan of $10,000, करेक्ट। इसकी मेच्योरिटी 5 साल की है और my exchange rate was $1 equal to 80 rupees. Initial recognition of loan will be how much? 1,10,000 into 80, this will be 8 lakh. 31st March, my exchange rate was 82 rupees. So my loan will be now 8,20,000. If I follow AS11, my exchange difference go to PNL. Agreed everyone? Huh? Follow Companies Act. Then there are two possibilities. Have you used for the depreciable asset, fixed asset or for any other purpose? तो 20,000 कहाँ आ जाएगा। अगर तुम डेप्रिशिएबल के लिए कर रहे हो तो एक इफेक्ट लोन में आएगा, सेकेंड इफेक्ट एसेट में एडजस्ट हो जाएगा। तो यार लोन अगर डेप्रिशिएबल एसेट के लिए ले रहे हैं तो एक्सचेंज डिफरेंस आपका एसेट में एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटलाइज होगा, लेस होगा, जो भी एसेट वैल्यू गेट रिवाइज्ड। और कोई और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर उसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा बैलेंस लोन पीरियड तक, इसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा इक्वली। सपोज माय लोन लाइफ इज 5 years, तो 20,000 upon 5, 4,000 अमोर्टाइज एवरी ईयर। हाँ, और सर अनअमोर्टाइज पोर्शन कहाँ रखेंगे, अंडर हेड फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम अकाउंट, इसमें रखना पड़ेगा। तो अनअमोर्टाइज पोर्शन जो है ना वो आपको फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम अकाउंट में कैरी करना पड़ेगा, करेक्ट। ये ऑप्शन है, मत जरूरी करना नहीं है। और एक बात, तुमने एक बार ऑप्शन चुन लिया देन यू कैन रिवर्ट बैक, और सारे लोन पर करना पड़ेगा, सारे के सारे लोन, 1-2 लोन पे नहीं, एवरी लोन यू शुड डू दैट। तो आई रिपीट द पॉइंट्स वंस अगेन प्लीज, एज पर AS11 that if you have an exchange difference generally it should go to P&L account, correct. In case of a holding company giving loan to a foreign subsidiary, correct, so in that case exchange difference will be retained, not amortized, retained under our reserve, foreign currency reserve account। फिर रिजर्व में पड़ा रहेगा सर। हाँ, जिस दिन सब्सिडी को तुम बेच दोगे that time the reserve will go to P&L। Third, borrowing cost qualifying asset to the extent interest is saved। मेन पॉइंट याद रखिएगा, कचरा नहीं, थ्योरी नहीं, मेन मुद्दा क्या है देख रहिएगा। फोर्थ पॉइंट, इफ यू टेकन अ लोन देयर इज अ कंपनीज एक्ट ओवरराइडिंग प्रोविजन, यू कैन अप्लाई इफ यू मर्जी तुम्हारी। एग्जाम में क्वेश्चन आया था 4-5 मार्क का ऑडिट पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में 5 मार्क का। कंपनी ऑडिट, कंपनी हैज टेकन अ लोन ऑफ सम यूरोस, ऐसा या पाउंड कुछ था, एंड द लोन एक्सचेंज डिफरेंस एज पर द ऑडिटर शुड बी ट्रांसफर्ड टू P&L, but as per the management it should be transferred to machinery account where for which the loan was taken. Comment. Answer was both were correct. One was talking AS11, one was talking Companies Act. तो आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा, ये आंसर था। If you had written only one is correct, you will get wrong. Both the answer is correct. Any option you choose, you should mention in the financial statement. We have opted for Companies Act. समझ में आ गया?
IFRs में प्रोविजन नहीं है क्योंकि कंपनीज एक्ट है, लेकिन IFRs में इंड एस 101 ने बोला है, 101 क्या होता है, रिलीफ देता है IFRs वाला सबको, नेशनल रिलीफ देता है कि तुम्हारे कंपनीज एक्ट में कुछ दिया हुआ है, यू कैन फॉलो दैट। तो अल्टीमेटली IFRs में नहीं है लेकिन इंड एस में है, बिकॉज ये रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे को आ जाता है। तो the action difference in case of Companies Act will be either adjusted towards the asset account or it can be amortized equally over the balance period of the loan। हाँ सर, अगर 20 में से मैंने 5 से डिवाइड करूँगा, 4 अमोर्टाइज किया P&L में, तो 16 बचेगा, फिर 16 का क्या करने का, फिर नेक्स्ट ईयर का एक्शन डिफरेंस निकालने का, उसको उसमें मर्ज करने का 16,000 में, फिर बैलेंस 4 साल के लिए अमोर्टाइज करने का क्यूमुलेटिव, बराबर, फिर लोन आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सर पूरा अमोर्टाइज हो जाएगा। एंड एवरी ईयर फ्रेश डिफरेंस आता है वो उसमें ऐड हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस के अंदर। यहाँ पे 16,000 बचेगा ना आपका, 20,000 का डिफरेंस, 4 अमोर्टाइज डिवाइडेड 5 ईयर्स, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ और डिफरेंस आएगा, वो ये ऐड करके फिर बैलेंस पीरियड के लिए अमोर्टाइज करते हैं, बिकॉज डिफरेंस हर बार आता रहेगा ना। फिर मतलब अगर नेक्स्ट ईयर में हमने कोई दूसरा लोन लिया तो उसका अमोर्टाइज करने का पीरियड विल बी डिफरेंट ना, उसका पीरियड अलग रहेगा। तो मतलब सो देन वी हैव टू अमोर्टाइज बोथ सेपरेटली, वो ओपनिंग बैलेंस विल बी ऑन द बैलेंस शीट एंड जो फ्रेश लेंगे ना ऑन द अदर, उसका लाइफ अलग, इसका लाइफ अलग, उसका लाइफ अलग, इसका लाइफ अलग, बट इट विल ऑल गेट अक्यूमुलेटेड। हाँ, यू कैन ऐड ऑल ऑफ देम। And what is this unamortized amount in the account? Now suppose 20,000, you amortize 4,000, remaining unamortized 16,000, where you'll keep blank in the balance sheet, some name should be given. Foreign currency monetary item account. Sir, account is entry at Amortization. P&L debit, huh? See, first of all, you calculate the loss, 20,000 gain. Loan debit to foreign currency translation, foreign FCMI. P&L debit to FCMI 4,000. Correct? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। 20,000 का डिफरेंस है, 20,000 ऐसा करो, लोन बढ़ गया, लोन लिया के दिया, लिया है ना, नुकसान हो गया आपका, तो लोन गेट क्रेडिटेड। एक मिनट, foreign exchange difference, don't write anything, keep a suspense account। Possibility 1, follow AS 11, P&L debit to exchange difference। Possibility to Companies Act machinery adjustment, asset account debit to exchange difference। Possibility 3, Companies Act amortization वाला, P&L debit to foreign exchange, foreign currency monetary item account, sorry, So P&L, FCMI to foreign currency। कितने का डिफरेंस आया? 20 का आया, गेन आया, आपको आपने लोन लिया है ना, लॉस आया आपको। पॉसिबिलिटी 1 अगर आपने एस लेन फॉर किया तो क्या एंट्री आएगी बताइए? डायरेक्टली एंट्री लेते, P&L डेबिट व्हाट, लोन, करेक्ट, फुल 20,000। सेकेंड, कंपनीज एक्ट जो लोन को तुमने एसेट के लिए वापरा है ना, तो फिक्स रेट अकाउंट डेबिट 20,000, करेक्ट, टू लोन, एग्रीड। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी, कंपनीज एक्ट, इनमें से कोई एक ही हो सकता है, बराबर, तुमने कोई अदर पर्पस के लिए लोन लिया, एसेट के लिए नहीं लिया, FCMI टू लोन, एग्रीड, 20,000 ना, एंड दैट आउट ऑफ विच P&L डेबिट टू FCMI, करेक्ट, हाउ मच? 4,000। कॉपी कर लो। If you understood, absolutely no problem. Now, what is foreign operation?
I revise foreign transaction once again. Foreign transaction is a transaction which is expressed in foreign currency. We are required to convert a foreign currency into reporting currency. For that, you should first initially recognize any foreign transaction at spot rate. On March ending, if it is monetary item, value at closing rate, non-monetary item, for the historical portion, spot rate, for the fair value, closing rate, and accordingly apply the other standard, correct? Achha, now exchange difference. Exchange difference will be transferred normally to P&L account. When borrowing cost capitalized for qualifying asset to the extent of interest saved, correct? Third, exception whereby holding company lends money to a foreign subsidiary, for a longer period of time, uncertain period, the exchange difference will be reserved in a accumulated account, foreign currency reserve. It can't be amortized. And in fact, there's an option given by the Companies Act to capitalize the exchange difference. However, if the money is used for acquiring a depreciable asset, and for any other purpose, if the loan is taken like working capital, buying land and all, in that case it should be amortized over the life of the loan equally under that foreign currency monetary item account, correct? Achha, now foreign operation. They never ask foreign operation, but you should know what is foreign operation. Foreign operation दो तरह का होता है, यानी ये एक ट्रांजैक्शन था, तो ये क्या है? ट्रांसलेशन है ये। यानी पहले वाले में तुम अपने ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट कर रहे थे, अब आपको फॉरेन सब्सिडरी को कन्वर्ट करना है, ब्रांच को कन्वर्ट करना है। यानी यू हैव फॉरेन सब्सिडरी, फॉरेन ब्रांच, फॉरेन एसोसिएट, यू हैव टू कन्वर्ट दैट्स ऑल। एंड फॉर दैट एक्ट हैज डिवाइडेड दैट फॉरेन ऑपरेशन इन टू पार्ट्स, इंटीग्रल ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन, करेक्ट? तो एक्ट ने इसको दो में डिवाइड किया है, इंटीग्रल ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन में डिवाइड किया। एंड अकॉर्डिंगली आफ्टर दिस डिवीजन वी कैन कन्वर्ट देम। एक मिनट, वी कैन कन्वर्ट देम, एक सेकेंड। Integral operation and non-integral operation. Integral operation and non-integral operation. तो foreign operation क्या होता है देखते हैं। Foreign operation क्या होता है देखते हैं। एक होता है integral foreign operation और दूसरा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ऐसा क्यों? बिकॉज व्हेन यू कन्वर्ट इनटू अ रिपोर्टिंग करेंसी, व्हेन यू कन्वर्ट इनटू रिपोर्टिंग करेंसी, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। व्हाट इज इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन? सिम्टम नंबर 1, इन केस ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, it is an extended arm of reporting enterprise. Non-integral foreign operation, it's a net investment of reporting enterprise. RE means reporting enterprise. Second, transactions between integral foreign operation and reporting enterprise are on high proportion. But in this case, the transaction between non-integral foreign operation and reporting enterprise are very few. Third, exchange fluctuation has direct effect on the financial statement of integral foreign operation. Exchange fluctuation has
almost no effect on the financial statement of reporting enterprise. The translation difference is transferred to P&L, and here the translation difference is retained under the head foreign currency translation reserve account until the disposal of the foreign operation. इसका मतलब समझना पड़ेगा. नॉन इंटीग्रल में ऐसे भी क्वेश्चन है ना जिसमें डिफरेंस को पीएनएल में भी डाला है और इसमें भी डाला है. Shall I start? Now friends, what is integral, non-integral? And what you will achieve this after the discussion, I'll tell you. See, एक बच्चा फैमिली में आया है ना, माँ बाप का ये बच्चा है, उन्होंने उसको दिलो जान से चाहा, पाला, घर का खाना खिलाया, 3 टाइम बच्चा घर पे खाना खाता है, घर पे रहता है, पला बड़ा हुआ, शादी का एज आया तो भी माँ बाप ने लड़की देखी, वही लड़की पसंद किया, शादी किया, ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन हो गई, है ना. नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, बच्चा हुआ, माँ बाप दोनों बिजनेस कर रहे हैं, हस्बैंड जो है वो डॉक्टर है, करेक्ट, मम्मी टीचर है ना, तो एंगेज है दोनों, बच्चे को पाल नहीं पा रहे, हॉस्टल में डाल दिया, नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन. यहाँ माँ बाप की मुलाकात रोज होती रहेगी, मार भी पड़ती रहेगी, यहाँ पर दिवाली में एक बार आएगा, कभी 2 साल में एक बार आएगा, बीच में कॉल कर देगा, और आजकल तो व्हाट्सएप पे रिसीव टेस्ट खत्म, है ना, कनेक्शन आर लेस, नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन, है ना, है क्या नहीं. यहाँ का मोहब्बत पीएनएल में, यहाँ की मोहब्बत रिटेन रिजर्व accumulated like a बर्फ, correct. Remember the example of monkey's ball. How you can remember timing difference, permanent. Monkey ran away with the ball, permanent difference. You can never catch the ball. Monkey is such an animal. Other animals are foolish, they throw the ball and run away. Monkey का जाति होता है कि एक permanent difference बनाएगा वो. आपका बॉल कभी वापस नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल मंकी क्यों दिया? बाकी जानवर लोगों बॉल को लेकर फेंक के चले जाएगा, जो समझेगा नहीं, खाने की चीज तो नहीं है. मंकी जो खाने की चीज नहीं उससे ज्यादा खेलता है, बिकॉज ही हैज अ टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग. He will always do cross things from you. You want it, he will run away. Permanent difference है. It arises, but doesn't reverse. वही बात है और कुछ नहीं.
तो यहां पर बच्चा जो हॉस्टल में रह रहा है चाहता ये भी आपको है, मोहब्बत यहां भी है, लेकिन यहां पर दूरी है। तो एक कहता है कि इट्स एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। तुमने अपना एक फाइनेंसिंग ब्रांच खोल दिया, खत्म, इंटीग्रेट। हर वक्त पे फोन करता रहेगा फाइनेंसिंग ब्रांच, सर एक कस्टमर आया इंटरेस्टेड, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। हाँ, आपका शोरूम लगा दिया, डिपो लगा दिया फॉरेन में, इट हैज टू बी इंटीग्रल, इट्स एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। तुम जो कारोबार यहां कर रहे हो गोरेगांव वेस्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में भी एक है, वैसा उधर फॉरेन में भी है। वेस्ट में तुम्हारा गुड्स जाता है, वैसे फॉरेन में जा रहा है। हाँ, शाम को पैसा क्रेडिट करके यहाँ भेजो, वहां पैसा क्रेडिट करके अकाउंट से ट्रांसफर करो। इतना ज्यादा वहां डिपेंडेंसी है। बट हियर इट्स माय नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने इन्वेस्ट किया हो वो कारोबार करेगा, मुझे नहीं करना है, वो कारोबार करेगा। आई एम नॉट सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। नाउ आई हैव ऑलरेडी बोर्ड द सीड, यू ग्रो ऑन योर ओन। तेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, वहीं से खरीद, बता मेरे को खरीद के क्या करता है तू। तेरे को लोन ले ले, वहीं से ले, पाउंड में ले लो, लेबर चार्जेस पाउंड में पे कर, गुड्स वहीं पर बेच, पैसा तू खुद रख, पैसे रखकर उससे लोन रिपे कर, तू खुद ग्रो हो वहां पर। आई वोंट इंडल्ज इन योर बिजनेस, दैट इज नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन। मोस्टली a subsidiary is a non-integral operation. When you buy, see in subsidiary you do control, but control साल में एक बार भी काफी है। हर दिन जाके ट्रांजेक्शन, इनफैक्ट you should have least transaction with them, because controlling is just like dictating terms, not to enter a transaction. There's no impact of cash flow here. I hope you got it. Transaction between the integral operation reporting enterprise on a high proportion. You disturb every minute. Cash flows can run here and there regularly, and hence the बीच में exchange rate comes again. But hardly one or two transactions, maybe a annual dividend check enough. एक डिविडेंड देना भाई बहुत हो गया, उस डिविडेंड के निचोड़ में तेरा परफॉर्मेंस आ गया, है ना। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली आपके एग्जाम में डिस्टिंक्शन बिटवीन आया है इसके ऑडिट पेपर के अंदर। हाँ, एक्सचेंज डिफरेंस ऑब्वियसली विल हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इन दिस केस एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हैज ऑलमोस्ट नो इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करेक्ट। तुम जब ऐसे फॉरेन ब्रांच को कन्वर्ट करोगे आपके इंडियन करेंसी में, तो एक्सचेंज डिफरेंस कहां जाएगा? पीएनएल। यहां पर पीएनएल में नहीं जाएगा, यहां पर रिजर्व में जाएगा। वही रिजर्व जो होल्डिंग ने सब्सिडियरी को लोन दिया था, उस रिजर्व में जाके बैठ जाएगा। सर एक बात बताइए, कन्वर्ट कैसे करें ट्रायल बैलेंस को? यस, कन्वर्ट कैसे करें फॉरेन सब्सिडियरी, फॉरेन ब्रांच को? अगर इंटीग्रल है तो कन्वर्ट कैसे करें, नॉन इंटीग्रल है तो कन्वर्ट कैसे करें? और कन्वर्ट करेगा तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा और डिफरेंस यहां जाएगा। सर होल्डिंग कंपनी, I'll convert subsidiary into my currency. That translation. Not transaction is alag. Transaction is different. Translation. And when I'll translate you, the exchange difference in my books will go where? Correct. In case of it is a integral operation, how will you convert it? Correct. Translation rules. Integral को कैसे convert करने का है? अगर वो मॉनेटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करने का, और नॉन मॉनेटरी आइटम है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, स्पॉट रेट, हाँ फेयर वैल्यू, क्लोजिंग, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने ट्रांजेक्शन में किया था। यस, एज इफ इट्स ऑन ट्रांजेक्शन। सो रेवेन्यू आइटम्स लाइक सेल्स एंड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एंड ऑल एवरेज रेट, गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम एचओ। व्हाट इज फ्रॉम एचओ? सपोज यू हैड गॉट $1,000 गुड्स सेंट टू ब्रांच, एचओ में कितना है रुपीज में, वो देखो कॉपी कर लो, मल्टीप्लाई रेट करने की जरूरत नहीं है। गुड्स सेंट बाय मी इज रिसीव्ड बाय यू, यू आर डॉलर, माय रुपीज इक्विवेलेंट। करेक्ट, ये कन्वर्जन हो गया। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पीएनएल आइटम, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये आपका कन्वर्जन डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। और अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो
मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी आइटम भी सब कुछ क्लोजिंग रेट पर, बट रेवेन्यू आइटम्स एट एवरेज रेट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, इसका ट्रांसलेशन डिफरेंस फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में रिटेन रहेगा जब तक सब्सिडरी बिक नहीं जाता। हो गया, रूल्स बता दिया, मेन रूल बता दिया जो आपको याद करना है एग्जाम में, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। छोटा ट्रायल बैलेंस आएगा, कन्वर्ट कर दो, खत्म। बैलेंस या ब्रांच बैलेंस जो भी होता है, एचओ करंट अकाउंट, जैसे गुड सेंट टू ब्रांच, रिकंसाइल हाँ ठीक है। मान लीजिए एचओ की बुक्स में $100 का अकाउंट बता रहा है डेबिट में, और वही करस्पॉन्डिंग ब्रांच की बुक में 60,000 बता रहा है, करेक्ट, 6,000 बता रहा है मान लो, हाँ 6,000। अब रिकंसिलेशन है कुछ, इसमें कुछ चेक इन ट्रांजिट है $2 का, 102 हो गया, तो यू कैन कॉपी 126, इसमें एक गैप आ रहा है, तो इतना कॉपी कर सकते हैं ना, और ये का करेंसी रेट मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। इसको बोलते स्टैंडर्ड्स इन नटशेल बोलते हैं, नटशेल, मेन एग्जाम में खाली पास होने का तो क्या करना है। गॉट इट एवरीवन? लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, थ्योरी आ सकती, सम नहीं आएगा, सम वो वाला आएगा ट्रांसलेशन वाला, वो कंपनीज एक्ट वाला और वो नॉन मॉनिटरी मॉनिटरी वाला आएगा, बस ये दो ही आता है। मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, मोस्टली नहीं आता, बट आएगा तो। लोग फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर से डर के भाग जाते हैं, उनको पता नहीं इस पे क्या है। वेरी इजी चैप्टर, बहुत ही इजी है, अगर तुम बराबर पढ़ो तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, वो स्टॉक का वैल्यूएशन तुमको देखना पड़ेगा, वो मेरा काम नहीं है, मैंने खाली फॉरेक्स पढ़ाया आपको। अपने स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करो, फेयर वैल्यू को क्लोजिंग से करो, फिर तुमको जो करना है करो। मेरा काम वहां तक पढ़ाना था। उसका क्या लैंड है कि मशीन है, वो आपको ये स्टैंड देखना पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं। वो विचेवर लेस नहीं करता, करंट विचेवर लेस है, लॉन्ग कॉस्ट पे है, स्टॉक विचेवर लेस है, मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, करेक्ट। ऐसा सब कॉन्सेप्ट होता है। एग्रीकल्चर एसेट्स फेयर पे, फेयर, उसमें विचेवर लेस है, फेयर 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 एवरी फेयर फेयर फेयर, देयर इज नो कॉस्ट, फेयर ओनली फेयर। तो फेयर ही लेना है आपको, उसमें फेयर वैल्यू नहीं, क्लोजिंग रेट मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हिस्टोरिकल आएगा ही नहीं। ऐसा वो नॉलेज आपका होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी है ना, मॉडल से कोई भी सम हम लोग कर सकते हैं। मेरे को आई विल सॉल्व मॉडल प्रॉब्लम ऑल्सो, सब मिक्स सम करूँगा मॉडल से, मिक्स जो आया करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, बराबर है। अच्छा, नाउ ऑफ कोर्स मैं करूँगा, मतलब सॉल्व नहीं करूँगा, सब सॉल्यूशन तो रहेगा, डिस्कस करेंगे, भाई ऐसा था, ये ऐसा है, ये फॉरेन एक्सचेंज में ऐसा है। Now, after AS11, deferred tax, correct? And और क्या क्या चैप्टर आज? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक रॉ मटेरियल वैल्यूएशन, डेंजर भी है, सबसे डेंजर रॉ मटेरियल वैल्यूएशन, और दूसरा फिक्स ओवरहेड, सबसे इंपॉर्टेंट। फिक्स ओवरहेड तो तुम्हारे एग्जाम में May 18 में आया था, अभी दे एक अटेम्प्ट छोड़कर न्यू सिलेबस पहले पेपर में फिक्स ओवरहेड आया, वो भी अंडर अब्जॉर्प्शन वाला आया। मैं बताता हूँ ना क्या क्या है एग्जाम में, और तुम्हारे एग्जाम में तो 3 अटेम्प्ट में फिक्स ओवरहेड आया, 3 अटेम्प्ट में 2017 के अंदर, बड़े बड़े प्रॉब्लम के अंदर आया, लेकिन आया फिक्स ओवरहेड। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट नॉर्मल कैपेसिटी लेवल, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट इज फिक्स ओवरहेड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी लेवल। स्टेप 3 कंपेयर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्म प्रोडक्शन, कम है तो क्या, ज्यादा है तो क्या। मैं इतने रूल पढ़ाता हूं, बस ये रूल पढ़ लो आप,
एक्ट तो मुझे पता है क्या, आई नो द एक्ट, एंटायर एक्ट, नॉर्मल उसका नॉर्मल कैपेसिटी का एक्ट क्या बोलता है, AS2, इंडेस 2 में भी सिमिलर है. नॉर्मल कैपेसिटी लेवल इज नथिंग बट दैट कैपेसिटी लेवल विच एन एंटिटी कैन एबल टू अचीव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम including loss arising out of plant maintenance. As per AS2, fixed overhead should be calculated as per the normal capacity level. Correct? Compared with the fixed overhead and absorption is to be calculated in case of higher production, lower production. ये पूरा एक्ट है आपका, लेकिन मैं आपको कॉन्साइज दे रहा भाई ये करना है. पूरा एक्ट थोड़ी पढ़ के सुना रहा हूँ. रॉ मटेरियल वैल्यूएशन, फॉर रॉ मटेरियल वैल्यूएशन जब करते हो कैसा एक्ट में क्या लिखा हुआ है, लेस मोर नहीं लिखता हो. रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इफ the raw material prices are on decline, matlab RC less than HC, and the raw material in which the fixed overhead will be, the finished goods in which the raw material will be incorporated, and means conjunction, dono condition, and the finished goods in which such raw material is incorporated sold below cost, the raw material valued at replacement cost. ये direct है. For finished goods, the finished goods will be valued at cost. But if the net realizable finished goods fall down below cost, then finished goods are valued at net realizable value. Net realizable value is nothing but estimated selling price, order cost of business, estimate cost to complete the goods, estimate cost to sell the goods. Act बता रहा तुम्हारा. Now you have to just, the main point what is been, you should know when you eat a mango, what you do, you first, correct, take out that skin from it. We normally don't eat it. Chinese can eat anything. And then we try to process it further to again take out something unwanted. Barabar? After 4 or 5 processes, we get an outcome to it. When you drink a juice, do you think anything? No, just open the wrapper, drink the juice. The main point is like juice. Drink it. You got a vitamin. Don't go in this farmland and then, in fact, harvest the fruit and not required. बैरेट से मत पढ़ो. हालांकि सही पढ़ना वही है, हकीकत बोलूँ तो मैं तैयार सर को पूछो, सर बैरेट से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं सर. एक्चुअली कई प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि देयर आर मेनी हु टीच फ्रॉम बैरेट एंड वन शुड टीच फ्रॉम बैरेट, बट फास्ट फूड का जमाना है. अच्छा, चार्ट वार्ट वर्क्स मच बेटर देन बैरेट. सुनिए, लेकिन जो शॉर्ट पे अच्छे से पढ़ा पाता है वो बैरेट पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा ऐसी बात नहीं है. अदरवाइज दे डोंट गेट शॉर्टकट्स, करेक्ट. एंड दे आर वेरी क्रिएटिव इन डूइंग एनीथिंग व्हाट यू आस्क देम. यू आस्क एनीथिंग, गिव द आंसर, यू थ्रो द आंसर. यू सडनली आस्क मी बाय प्रोडक्ट, आई आंसर्ड इट वेरी क्विकली. व्हाट इज द आंसर? नवंबर 12 का एग्जाम भी बोला मैंने आपको, बोला कि नहीं? नाउ हियर फॉरेक्स इज इजी चैप्टर, जस्ट रिमूव टेंशन फ्रॉम द माइंड. ये रूल ही होगा एग्जाम में, तुम पेपर में देख लेना. कंफर्मेशन, सॉल्व वेरी सब. नाउ डेफा टैक्स इज ओवर.